व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही, बोले आनंद शर्मा। सीएम योगी ने बिरसा मुंडा संगोष्ठी का उद्घाटन किया। जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव आयोजित। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जनता के मुद्दों से भटक रही है सरकार। नई दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी की अहम प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री आनंद शर्मा ने पार्टी की ओर से मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। शर्मा ने केंद्र सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रही हमलों को लेकर तीखा हमला बोला है। Today I want to draw the attention through you of the country of a matter of serious concern, that is the drift in our foreign policy, a visible decline of India's influence in the world, our neighborhood policy, and the very fact that there have been fundamental departures to the detriment of India's standing in the Committee of Nations at the United Nations. Foreign policy of a country, and in case of India historically, is meant to promote India's national interest, to serve India's national interests, and also take our worldview to our strategic partner countries, to mobilize support in favor of what we feel is right and what would serve the larger cause of peace and humanity. Foreign policy, as it has evolved since independence, always had the backing of a broad-based national consensus. It has never been held captive or hostage to partisan politics. Unfortunately, that national consensus has been weakened in recent years, if not completely broken down, which it has on many of the positions that the government has arbitrarily chosen to take, departing from India's traditional positions without consulting either the parliament or informing. The government of the day has a mandate to take decisions. But when it comes to foreign policy, it involves everyone. And that's why the consensus is important. India commanded an authority and respect in the world. Not that we were a major economic power or a military power. We had the moral authority. We were acknowledged as a voice of humanity. And that's why wherever the crisis came in the world, those countries affected looked up to India. Unfortunately, that's no more the case. It is up to the government that how it retrieves this position, India's standing, and rebuilds national consensus. Looking at the situation as it is, it's time for recalibration, honest introspection,
and course correction in our foreign policy approach. Equally important and integral to this is the neighborhood policy. We were, and rightly so, acknowledged as the preeminent power of South Asia. Nobody can say that today. It's for us to rethink our strategy, to engage in a manner that despite the challenges and complexities of the neighborhood, India regains its strength and standing in its own region. Our advice to government will also be that while engaging with the neighborhood, we have to be cautious. A foreign policy is meant to engage with other sovereign countries. It must not be linked for the furtherance of any domestic partisan political agendas. That would be not only a mistake, but a blunder, which should be avoided at any cost. Our purpose is not just to criticize or point scoring. No. It is to caution, to share our concerns, which are placed before you. एक ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है कि भारत की विदेश नीति जिस तरह से उसमें बिखराव है इस समय, भारत का प्रभाव विश्व में कम हो रहा है। ये सबके लिए दुख की बात है। इस भारत देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, जहां दुनिया के देश जो प्रगतिशील देश हैं, जिन महाद्वीपों में बड़े संघर्ष हुए आजादी के लिए, रंगभेद के खिलाफ, उन्होंने भारत की अगुवाई को माना, भारत की आवाज को सुना। चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है, एशिया के मुल्क हैं। और इसका ये कोई कारण नहीं था, जैसे मैंने बताया, कि हम कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे, बहुत बड़ी सैनिक शक्ति थे। नहीं, 50 के दशक में जब कोरिया का क्राइसिस हुआ था, भारत की तरफ दुनिया ने देखा था समाधान के लिए। आज अलग बात है कि ये एक नई रिवायत बनी है कि उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के नेता जिनको विश्व सम्मान करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आलोचना होती रहे। पर यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि हर चुनौती के समय जो विश्व के सामने आया, एक देश जो लंबे अरसे की पराधीनता के बाद, गुलामी के बाद आजाद हुआ, उस देश भारतवर्ष की आवाज दुनिया सुनती थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति हमारी नैतिकता की थी और मानवता की आवाज की थी। आज वो दोनों कम हुई हैं। विदेश नीति के लिए यह भी आवश्यक है, जब हम अपने राष्ट्रहित को आगे लेकर चलते हैं, उसके पीछे एक आम सहमति देश की रहती है। जैसा मैंने बताया, पूरे देश का कंसेंसस साथ चलता था। वर्तमान सरकार ने उसको कमजोर किया है। एक तरफी फैसले लेके जो हमारी कूटनीति और विदेश नीति से संबंधित है,
उस पे विराम लगना जरूरी है राष्ट्रहित में। सरकार को देखना है कि किस तरह से इस पे विचार करे, आत्मनिरीक्षण करे, वास्तविकता को स्वीकार करें और जो देश के बड़े दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठकर भी विचार विमर्श करें। इसलिए हम ये भी आवश्यक समझते हैं कि आने वाले संसद के सत्र के अंदर विदेश नीति पर और जो समस्याएं या चुनौतियां जुड़ी हैं आज, वो भारत के लिए भी हैं, विश्व के लिए भी, उसके बारे में भी व्यापक चर्चा हो। There is need for a debate. There is need for a discussion. A comprehensive one. The time has come on India's strategic engagements and India's foreign policy without any further delay. No country in a democracy avoids and evades a discussion on its foreign policy. You would not see it in the parliaments of any major country where there is a honest, frank discussion. More damage is done by being non-transparent or opaque and not communicating with your own country first in a correct manner, so that we retain the strength of our voice in the global affairs. Today, the multilateralism or the multilateral world order of governance is under siege. बहुराष्ट्रीय प्रणाली है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी, आज वो चरमरा रही है। जो भी फैसले हुए, समझौते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कमजोर हो रहा है, उनके निर्णयों पर अमल नहीं होता। अगर कोई निर्णय होता है, उसकी खुली मुखालफत होती है। So this is a serious issue before the world. If a rule-based multilateral order of governance collapses, where does India position itself along with its strategic partner countries? This is a fundamental challenge today before us. It cannot be wished away. You all are aware what's happening in the world. So unless and until we, along with our partner countries, have a strong voice, we will not be able to influence, let alone determine, the future course in the world that we live in. See, a country which has taken the right positions, which I referred to, for which we have been respected, for us to be a mute witness, to be silent on what is happening in Gaza, is unacceptable. It has shocked our traditional partner countries, those who looked up to India, that India will speak. India had taken a position, so had the Indian National Congress in October 2023, when there were attacks by Hamas. But after that, what's happening is a collective punishment to innocent Palestinian people, especially old, elderly, men and children. Tens of thousands
As per the UN agencies, almost 500,000 people, mostly children and women, are facing starvation. It is mass killing, brutal killings, a genocide. It's a human catastrophe. 58,000 or more. Every day the number changes. When people go, starving people, to collect the food, live ammunition is used and people die. It's not just a number. It concerns an entire people and a region. The number of injured, maimed people would be 4 times more. 81% of the territory there, which is under illegal occupation, by the way, since 1967, is under the Israeli military control. India has relations with both. Why India cannot use its influence and voice to tell Israel to stop? That's the question. Because what is happening is in brazen violation of international law, UN Charter, and the Charter on Human Rights. Last month, on 12th of June, when the UN General Assembly discussed this matter and a resolution was voted upon, and what was the resolution? For ceasefire, for immediate cessation of hostilities and military action, so that much needed humanitarian assistance could reach the trapped people. 149 countries voted for the resolution. The land of Gandhi, who had taken a position on this matter way back around when this Balfour Declaration took place and the First World War was ending, abstained. India did not vote for peace and for ceasefire. I cannot use the word unfortunate. That is painful, unacceptable. That one action diminished India's credibility as a leader and voice of Global South. Because all the countries of the Global South voted for the resolution, how can the leader not be with them? And not only the countries of Global South, but also major countries of Europe, including 2 P5 countries, UK, France, Germany. They all voted for the resolution. Of our traditional partners in BRICS also, the original founders of the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and then South Africa joined. All 4 were with the resolution, voted for the resolution. The countries I named in Europe, they have strong relationship both with Israel as well as with America. But yet they voted for humanity, which we did not. It is a fundamental departure from India's traditional position. And the silence continues. We would urge the government, they should, as we wish to be, to reclaim our moral standing as a voice of the Global South by speaking on this and prevailing upon the strategic and traditional partners to work for bringing
earlier peace in Gaza and the region. सर मैंने बताया अभी अंग्रेजी में कि भारत ने जो हमारा ऐतिहासिक हमने पोजीशन ली है मानवता के लिए, मानव अधिकारों के लिए, और हमारी आवाज़ को विश्व ने हमेशा सम्मान से सुना। ख़ास तौर पे जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, तमाम राष्ट्र जो पहले प्रगतिशील देश थे उसमें अधिकांश वही हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व भारत के पास रहता था। अभी जो लंबे अरसे से गाजा में नरसंहार हो रहा है, एक त्रासदी है। अधिकांश लोग जो मर रहे हैं वो निहत्थे नागरिक हैं, मजबूर हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। कहीं भी कोई भी युद्ध में भी निहत्थों पे नहीं इस तरह से निरंतर हमला रहता है। मैंने आंकड़े दिए, आपको भी मालूम है। जब तक ये प्रेस वार्ता खत्म होगी, डर ये है कि और भी उसमें आंकड़ों में फेरबदल हो जाएगा। भारत की चुप्पी से कष्ट हुआ है हमारे मित्र राष्ट्रों को। जो 12 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने प्रस्ताव पे चर्चा की और वोट की, 149 देशों ने उसके पक्ष में मत दिया। तमाम उसमें जो राष्ट्र थे, अधिकांश वही देश थे जिनकी भारत से मित्रता भी है और जिनका ग्लोबल साउथ जहां जो भारत की तरफ देखते थे। एक समय ऐसा था हमारी कूटनीति में, और जो पुराने लोग हैं उस चीज को जानते हैं, खासतौर पे जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस विषय के, कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसे विषयों पे वोट पड़ता था तो कई देशों के लोग अपने एम्बेसडर्स को हिदायत दे के रखते थे। उनको कहते थे, पहले अगर आपके पास कोई संदेश ना आए राजधानी से, वहीं देखो हिंदुस्तान भारत देश कहां वोट कर रहा है, जहां इंडिया वोट करता है आपको इंडिया के साथ वोट करना है। आज 149 देश एक तरफ वोट कर गए, जिसमें बड़े पश्चिम के राष्ट्र जिनका अच्छे संबंध अमेरिका और इजराइल से भी हैं, क्योंकि किसी को हमारे भी संबंध हैं, वो वोट कर सकते हैं। फ्रांस कर सकता है, इंग्लैंड कर सकता है, यूके, जर्मनी कर सकता है। हमारे साथी देश जो ब्रिक्स में हैं, बड़े देश, क्या रूस नहीं है हमारा साथी देश? ब्राजील नहीं है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है? हम सबसे अलग थलग कैसे हो गए? और आज ये सवाल करना भी, उस पर भी अगर आपत्ति हो तो बड़ा दुख आता है। भारत को इसमें सुधार करना चाहिए और इन तमाम विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम दोबारा नैतिकता के जहां शिखर पर हम थे वहां प्रयास हम तभी कर सकते हैं, हमको तभी नेतृत्व मिलेगा, हम तभी आवाज बन पाएंगे ग्लोबल साउथ की। जो हम कहते हैं शब्दों में नहीं होगा, हम करते क्या हैं, हमारा निर्णय क्या है, दुनिया उसकी तरफ देखती है। इसीलिए हमारे सरकार को चेता भी रहे हैं और सरकार को सलाह भी दे रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, कृपा करके इस देश की विदेश नीति को मूलभूत परिवर्तन करके एक लंबे समय के लिए अहित देश का होगा। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा इसी विषयों से संबंधित तो मैं उसका उत्तर दूंगा।
सर, ज्यादातर जो आपके सवाल हैं वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर है। अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड डील करने के लिए बेताब है, एकदम परेशान है एकदम। लेकिन अमेरिका क्या अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करना चाहता है? भारत का क्या एडवांटेज रहना चाहिए या रहेगा इस ट्रेड डील में, और भारत की चिंता क्या है? खासकर जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट है, इसको लेकर इस ट्रेड डील में अमेरिका का कंसर्न क्या है? वो इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसमें साफ दिखता है। और भारत के साथ क्या रहने वाला है? भारत एक अलग देश है। भारत की अपनी प्राथमिकताएं हैं। अमेरिका के साथ अमेरिका हमारा एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। संबंध का विशेष महत्व है, पर जो भी बातचीत हो बराबरी की होनी चाहिए और वस्तु स्थिति को मद्देनजर रख के और राष्ट्र हित को सामने रख के। किसी दबाव में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मल्टीलैटरलिज्म का जिक्र किया था। व्यापार में भी, ट्रेड में भी उसका महत्व है। चाहे अमेरिका है, भारत है, हम WTO के सदस्य हैं। हमें मान्यता है कि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ट्रेड रिजीम होना चाहिए जो नियमों पर आधारित हो, कानूनों पर आधारित हो, समझौतों पर आधारित हो। उस लकीर से हट के कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मांग रहती है बातचीत के समय में, भारत की भी मांग रहनी चाहिए, पर जो भी हम समझौता करें उसमें, जैसा आपने कहा, कृषि का क्षेत्र और डेयरी का क्षेत्र बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है भारत के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे उत्पादकों के लिए। और उसके और भी कई कारण हैं जिससे हम बिल्कुल एकदम से खोल नहीं सकते। हमारे भारत को उसमें क्या मिलता है, हमको ये भी देखना है। आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। हम बड़े हैं पर उतने बड़े नहीं। हमारी पर कैपिटा इनकम $2,500 होगी तो उनकी $70,000 होगी। तो इसलिए सब चीजों को मद्देनजर रख के संतुलित निर्णय होना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से जो बातचीत कर रहे हैं वो राष्ट्र के चिंताओं और हितों को मद्देनजर रख के ही कोई समझौता करेंगे। सर, अभी आपने सरकार के विदेश नीतियों पर तमाम खामियां बताई और सरकार को ये भी कहा कि इसे इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन आपके ही पार्टी के नेता हैं शशि थरूर, जो ये कहते हुए कई आर्टिकल उन्होंने लिखा और कई बार वो बोल चुके हैं कि विदेश नीति जो है वो सबसे अच्छी है, संपूर्ण विश्व में जो है भारत का गौरव बढ़ा है, मोदी सरकार की तारीफ की है। इस पर क्या कहेंगे? आपने सुन लिया। मेरा नाम आनंद शर्मा है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। धन्यवाद। So in the upcoming parliament session, are you planning to bring up trade besides? Yes, this will be discussed. All important matters concerning the foreign policy, including our agreements that we reach. If there are questions, the government must be open to inform the parliament, and parliament must discuss if required. Yes, it is the government of the day which enters into agreements or deals. At the same time, what we are saying, I cannot make a premature statement. When whatever is being negotiated, we hope that India's national interest and concerns will be borne in mind, and it should be a balanced and fair agreement. India must not be in conflict with its commitments at the WTO or the WTO agreements. We must not become a party to the unraveling of the multilateral rule-based trade order. We have to be cautious. That's
our advice. सर मेरा सवाल है क्योंकि आपने सीज फायर का भी जिक्र किया, जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान मैंने की गाजा वॉर का हो रही किया। थी। हाँ, आपने गाजा का जिक्र किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि खबरें इस तरह की आई हैं कि 18 अगस्त को अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। ये खबरें जो है पाकिस्तान मीडिया के तहत जो है वो सुनने को मिल रही हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं कैसे रिएक्शन दे सकता हूँ? पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है मुझे ज्ञान नहीं, मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? व्हाइट हाउस ने कोई बयान दिया हो, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से पुष्टिकरण हुआ हो, तब मैं प्रतिक्रिया दूंगा, उससे पहले नहीं। Sir, this is Hariom from Jharkhand Reporter. I have two questions. First, sir, on what specifically Congress, on what topics is Congress want debate on parliament, upcoming parliament? And second is, does the Congress still believe in Nehruvian non-alignment in today's multipolar, high-stakes global order? The world must remain multipolar. Non-aligned movement also respected that. What we are cautioning against is unipolarity. On one hand is India, irrespective of which government. The word global south is not coined yesterday or 2 years ago or 1 year ago. This has been in existence when the new order emerged after the Second World War. When the countries which were not independent or newly independent countries who came out of colonization or subjugation formed an alliance. Non-aligned was an alignment of the countries of the global south, the developing countries, the poor and the weak countries. So that has relevance today when the multilateral order is under threat. And there's those who actually founded this post-Second World War order, including the United Nations and the other two Bretton Woods institutions, the World Bank and the IMF, are busy dismantling it brick by brick. That's why our interest lies in multipolarity and taking with us or remaining identified with the countries of the global south. Upcoming parliament? I think we have given a list that has been released by the media. Congress President Mallikarjun Kharge ji also had a press conference, and both the leaders of opposition have written to the chairman and the speaker respectively. So those are the issues. What we feel that both domestic issues as well as global issues. That's why I've spoken about foreign policy, and the positions that we take must be discussed. We are a democracy, and that's what is expected from democracies. When Parliament meets, these issues must get discussed. Thank you. दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हर देश को, हर घटना को ट्रेड से जोड़ के कहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, उसको लेकर उन्होंने तकरीबन 23 बार से ज्यादा
ये कहा कि उन्होंने ट्रेड थ्रेट दिया और उसकी वजह से ये सीज फायर हुआ, वो यही बातें इजराइल के और बाकी जो ईरान के बीच में हुआ उसमें भी उन्होंने कहा। तो बार बार वो जिस तरह से ट्रेड थ्रेट देके आर्म ट्विस्ट करते हैं, ऐसे में भारत के साथ जो ट्रेड डील होने जा रही है उसमें भी वो एक तरह से एक प्रेशर बनाया हुआ है उन्होंने अपनी तरफ से कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे अगर भारत सरकार एक तय समय सीमा के अंदर अमेरिकी शर्तों के आधार पे व्यापारिक समझौता नहीं करता है। देखिए, उनकी नीति है और उनकी सोच है। अमेरिका बहुत शक्तिशाली बड़ा देश है और बाकी बड़े देश हैं दुनिया में, भारत भी है, आपने रूस का भी जिक्र किया था, चीन भी है, यूरोप के बड़े देश हैं, जापान है, जर्मनी है, कोरिया है। अब उनका सबसे झगड़ा चल रहा है, सब पर टैरिफ है, बाकियों को धमकी है। ये सब देश और भारत देश भी लाचार नहीं है, बेबस नहीं है। दबाव में और धमकी में कोई समझौते नहीं हो सकते। ये अमेरिका को संदेश भी स्पष्ट होना चाहिए कि वो स्वीकार्य नहीं है। सम्मानजनक बात होती है, अपमानजनक समझौते नहीं होते। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने किया राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए आदिवासी समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की स्मृति और योगदान पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर उन्होंने बिरसा मुंडा के बलिदान, विचारों और उनके आदिवासी समाज के उत्थान में किए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा सिर्फ एक जननायक नहीं थे, बल्कि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी चेतना के प्रतीक भी थे। राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में अभी जिनका सानिध्य महापिता ने परिवार को और यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्राप्त हुआ है, ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री अशोक भगत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सुशील सिंह जी, श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, बसंत महिला महाविद्यालय के प्रबंधक शैसेन दुबे जी, प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की कन्वीनर प्रोफेसर अंजना सिंह जी,
आज के इस संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, अन्नपूर्णा मंदिर के पूज्य महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, जगतगुरु स्वामी श्री सतवा बाबा, संतोषाचार्य जी महाराज, महाविद्यालय के सभी सम्मानित यहाँ के आचार्यगण और महाविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विभिन्न टेक्निकल्स जो सेशंस होंगे उसमें अधिकारी वक्ता के रूप में उपस्थित सभी अन्य यहाँ के प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाविद्यालय परिवार को बिरसा मुंडा की इस विरासत को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और महाविद्यालय परिवार ने मुख्य वक्ता के रूप में भी जिनका चयन किया है वह उन लोगों के बीच में ही जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड व्यतीत किया है, यानी जैसा नाम है वैसे ही काम भी है, तो स्वाभाविक रूप से वे उसके आधिकारिक वक्ता भी हैं। और एक आधिकारिक वक्ता का वक्तव्य यहां पर कीनोट एड्रेस के रूप में आप सबको सुनने को मिला है। मैं इस अवसर पर अशोक भगत जी की उन सेवाओं के लिए उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबाद बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैंने देखा है कि जब मैं महाविद्यालय परिसर में आया हूं तो परिसर का वातावरण देख करके
कहते हैं ना कि जो जैसे दिखेगा वैसे ही बिकेगा। आपने पहला इंप्रेशन बाहर का बहुत शानदार बना के रखा हुआ, एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में मां गंगा के सानिध्य में रह करके। कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने, भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे। और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़ करके सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। याद करिए, औरंगजेब के समय कोई कल्पना करेगा कि कोई
हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दे, लेकिन उन्होंने वह भी करने का काम किया था। यानी ये चीजें हमें हमेशा इस बात को हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जो समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत की विरासत की, भारत की धरोहर के संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है, उसे कैसे हमने अपने आप से अलग करके भारत की परंपरा से काटने छांटने का प्रयास हुआ है। आप आज भी देख सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी परिवार में कोई 4 भाई हैं, 4 में से 2 भाई अच्छी जगह में पहुंच गए हैं, वे शहरी जीवन यापन कर रहे हैं, 2 भाई गांव में रह गए हैं, गांव में कनेक्टिविटी न हो, गांव में किसी प्रकार का कोई साधन न हो और विपन्नता में उनको रहने का अवसर मिल रहा हो। अगर 30 वर्ष 40 वर्ष के बाद वे आपस में कहीं मिलेंगे तो एक तो कोई बोलेगा नहीं कि चारों एक भाई है। उनकी शकल सूरत में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में, उनकी बोली भाषा में अंतर साफ दिखाई देगा। मैंने 25-30 वर्ष की बात की है, और जहां सैकड़ों और हजारों वर्षों की एक गैप हो गया हो, वहां पे क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति होगी। आज भी जनजातीय समुदाय जिन स्थितियों में रह रहा है और वहां पर साधन नहीं, वहां पर अन्य सुविधाएं नहीं, अपनी स्वयं की मेहनत से उन्होंने भारत की विरासत को किस रूप में संरक्षित किया। वेदों की पूजा हम करते हैं, लेकिन वेदों के व्यवहारिक स्वरूप को उन्होंने अंगीकार किया। आप याद करिए, हम माता भूमि और पुत्रोहम पृथिव्या की बात करते हैं, लेकिन हमें किसी अच्छे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने में कोई संकोच नहीं होता। धरती माता के लिए अगर कहीं पे कोई तालाब बनाया गया होता है तो हम उसमें कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। किसी तालाब की भूमि पर कब्जा करने में भी हम कोई संकोच नहीं करते। नदी के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने में हमें संकोच नहीं होता, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप देखना है, धरती माता के प्रति इस दायित्व का निर्वहन अगर किसी ने किया है, प्रकृति की पूजा को अगर किसी ने महत्व दिया है, तो वह जनजातीय समुदाय ने दिया है, और बड़ी प्रखरता के साथ किया है, बड़े प्रभावी तरीके से उन्हें सम्मानित किया है। यानी वेदों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया। और भारत में हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है, जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है, हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। हमने जैन परंपरा को भी उतना ही सम्मान दिया है, भले ही कोई वेद को माने न माने। फिर ये प्रश्न जनजातीय समुदाय के लिए क्यों खड़ा होता है? जनजातीय समुदाय भारत का आदि समुदाय है, भारत की परंपरा में रसा बसा हुआ समुदाय है, जिसने भारत की सनातन परंपरा को सदैव एक नई मजबूती प्रदान की है। याद करना, वेदों की ऋचाएं किसी राजमहल के अंदर नहीं, किसी जंगल के नीचे, जैसे यहां पर आपने बाहर क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसी प्रकार के एक सुरम्य वातावरण में ये सभी लिखी गई हैं। और हमारा हर प्राचीन ग्रंथ अपने यहां एक पक्ष अरण्य कांड का भी रखता है। याद रखना, अरण्य जीवन भारत की परंपरा का, वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है।
ये उस परंपरा का हिस्सा रहा, उसके इतर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने जानबूझ करके एक शरारत के तहत कुछ पश्चिम से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों ने हमारी परंपरा को कुंठित करने का काम किया, हमारी कलम को कुंद करने का काम किया, और परिणाम क्या है? हम लोगों ने अपने ही समुदाय को अपने आप से अलग किया। भारत की विरासत का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए इस संपूर्ण पक्ष को लेकर के जब भी भारत के अंदर आजादी के किसी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की बात रही है, तो जनजातीय समुदाय उस मामले में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत के उस आंदोलन को, भारत की इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। कभी वो पीछे नहीं हटा, आगे रह करके किसी भी सुधारवादी कदम को लेकर के वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज भी ये कमी हमारी हो सकती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ये कमी भारत की उन सरकारों की रही होगी जो लोग उन तक पहुंच करके उन लोगों तक शासन की सुविधाओं को पहुंच करके संवाद को नहीं बना पाए। उनके अंदर राष्ट्रीयता किस भाव के साथ जुड़ी हुई है, मैं उसको कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लगभग 739 द्वीप हैं जो भारत से काफी दूरी, भारत की शेष भूमि से काफी दूरी पर है। उसका अंतिम जो पॉइंट पड़ता हो इंदिरा पॉइंट है, मुझे लगता है कि वहां से इंडोनेशिया की दूरी बहुत नजदीक पड़ती है। अलग अलग द्वीप हैं, उन द्वीपों में से केवल 39 ऐसे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं और उनमें से भी 7 ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। उसमें से एक द्वीप पे एक बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस द्वीप में केवल जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। बाकी अन्य द्वीपों में भी हम लोग गए थे, तो अन्य द्वीपों में जब हम लोग गए थे तो वहां पे कोई हिंदी तो बोलता नहीं था, लेकिन हाँ, जो आपका पोर्ट विलियर है उसको छोड़ करके शेष अन्य में लोग बहुत कम बोलते थे। कोई बंगाली बोलता था, कोई तमिल बोलता था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो जनजातीय बाहुल्य द्वीप है उनकी संख्या बहुत कम थी। 43 की संख्या उनकी मात्र थी उस समय जनजातीय समुदाय की, और उनकी एवरेज आयु वहां पे उस समय 45 वर्ष थी। 45 वर्ष से ज्यादा कोई वहां जीत नहीं रहा था। तो हम लोग उनके बीच में गए तो मैं देख के बहुचक था। भारत की शेष भूमि से लगभग 2000 किलोमीटर दूर और एक छोटा सा समुदाय उनका, यानी 43-44 लोगों का एक समुदाय, और विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे, विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे। ये अनुमान कर सकते हैं कि यह वे लोग हैं जो साधन से दूर, किसी भी व्यवस्था से दूर रह करके और वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, थारू जनजाति वहां पर रहती है। थारू जनजाति के लिए उनके बीच में पिछले 30 वर्ष से हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहां पर कार्य करने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो 2008 की घटना है। भारत और नेपाल की सीमा में ये सभी थारू बाहुल्य गांव पड़ते हैं, थोड़ा महाराजगंज में, थोड़ा सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर और श्रावस्ती में इनके 36 गांव पड़ते हैं, फिर लखीमपुर खीरी और थोड़ा बहुत पीलीभीत में। नेपाल के अंदर एक भीषण संघर्ष होता है, उस समय खूनी संघर्ष चल रहा था। तो मैंने उस समय हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया। मैंने कहा, ये खूनी संघर्ष हो रहा है, ये किसका है, कौन लोग इसके पीछे? मुझे बताया गया कि साहब ये खूनी संघर्ष माओवादी और मधेसी के बीच में। मैंने कहा, माओवादी तो नेपाली जो वहां पे नक्सली हैं और नेपाली वे सब हैं, मधेसी कौन? पता लगा कि जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हुए हैं वे मधेसी कहलाते हैं। तो मैंने कहा, भारतीय मूल से जुड़े हुए जो लोग नेपाल की तराई में हैं वे मधेसी हैं, और माओवादियों की तरफ से कौन लड़ रहा है? तो पता लगा कि थारू
तो मैंने कहा थारू माओवादियों की तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि बलरामपुर में हम एक छात्रावास चला रहे थे और एक विद्यालय उन बच्चों के लिए चला रहे थे। तो क्या थारू समुदाय के यहाँ के लोग तो वहां से माओवादियों की ओर से तो नहीं लड़ रहे हैं? तो मैंने तत्काल वहां पे जो लोग व्यवस्था में लगे थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा ये सब क्या मामला है, थोड़ा मालूम करो, क्योंकि उसी से कुछ दूर, कुछ ही 12-15 किलोमीटर की दूरी पे ये सब खूनी संघर्ष चल रहा था। काफी लोग मरे थे उसमें। तो वे गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा यहां नहीं, भारत के अंदर नहीं, ये नेपाल के अंदर हो रहा है। मैंने कहा नहीं, तो मैं भी जान रहा हूं नेपाल के अंदर है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं? और ये थारू है तो थारू माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं, तो कहां के थारू हैं? तो उन्होंने कहा नेपाल के लोग हैं। तो मैंने कहा ये जो भारत के थारू हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, उस समय जो सरकार थी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा देखिए भारत ये दोनों सरकारें इसका संज्ञान नहीं लेंगी, लेकिन हम लोगों को स्वयं सतर्क रहना होगा, कुछ हम तो करें। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं? तो इमलिया कोडर एक जगह है जहां नानाजी देशमुख ने, वहां पे एक छात्रावास उन्होंने बनाया था। ये नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर है, भारत के अंदर। तो मैंने कहा वहां एक सम्मेलन रखो इन सभी थारू समुदाय के लोगों का, मैं आता हूं। वहां पे सम्मेलन हुआ इमलिया कोडर में। जब मैं गया तो थारू समुदाय के लोग पहले मुझे लेके गए। उन्होंने कहा साहब आप हमारे जो देवता हैं उनका पहले सम्मान करेंगे। मैंने कहा चलो, मैं तो इसीलिए आया हूं। तो उन्होंने किसको राह रखा था? अश्वारोही महाराणा प्रताप की मूर्ति। तो मैंने कहा भी ये मूर्ति तो महाराणा प्रताप की दिखती है। उन्होंने कहा हाँ यही तो है हमारे हीरो। मैंने कहा महाराणा प्रताप राजस्थान में पैदा हुए, मेवाड़ राजस्थान में, आप लोग भारत नेपाल की तराई में हैं। कहा देखो साहब हमारे जो पूर्वज रहे होंगे ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पलायन किए होंगे और हम उसी की विरासत हैं, इसलिए महाराणा प्रताप को अपना हीरो मान करके हम लोगों ने उनकी मूर्ति लगाई हुई है। तो मेरे लिए एक आश्चर्य था। मैंने कहा भी महाराणा प्रताप की मूर्ति आपने लगाई है तो फिर नेपाल के अंदर माओवादियों की ओर से कौन लड़ रहा? उन्होंने कहा साहब वो सब भटके हुए लोग हैं, हम उनके साथ क्यों जाएंगे? हमारे लिए तो देखो नानाजी देशमुख की संस्था और मंदिर के द्वारा जो हॉस्टल और विद्यालय चल रहा है, जब ये हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है तो हम माओवादियों के साथ क्यों खड़े होंगे? देखो कृतज्ञता का भाव। हमने तो एक हॉस्टल खोला था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की और एक विद्यालय खोल दिया। वे उतने से प्रफुल्लित थे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वे लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। सरकारें अगर उन तक पहुंचती तो और भी अच्छा परिणाम आ सकता था। और वही कार्य जहां तक आजादी के बाद की सरकारें नहीं पहुंच पाई, छोटा नागपुर जैसे क्षेत्र में, झारखंड के उन क्षेत्रों में जाकर के अशोक भगत जी कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जो काम सरकार को करना चाहिए था, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित करके उस क्षेत्र में वह काम इन्होंने किया है। कहने का मतलब हमारा संवाद जहां बाधित होगा वहां संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और वही संघर्ष हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलता है। याद करना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए जो प्रेरणा दी, उसके पीछे का भाव यही है, एक संवाद हो, एक डायलॉग हो हमारे स्तर पर। हम भी जाएं उनके बीच, हम जनजातीय समुदाय के लोगों को बुलाएं अपने बीच, वे आकर के देखें इन कार्यक्रमों को और उनके मन में भी एक नई प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो। और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा जितनी सुविधाएं इनको मिलनी तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का एक दायित्व तो हमें उठाना चाहिए। यानी इनको हर प्रकार की सुविधाओं से पूरी तरह युक्त करने का काम होना चाहिए। जहां इनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, हम उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दें। आप आश्चर्य करेंगे 1947 से लेकर 2017 तक
दर्जनों ऐसे गांव थे जहां लोग तो रह रहे थे लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं थी, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता था, उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें कोई भी अन्य सुविधा नहीं मिलती थी, पेयजल के लिए तालाब का पानी पीते थे। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, पहले इनके राशन कार्ड बनाओ, इनको जमीन के पट्टे स्वीकृत कराओ, इनके लिए आवास की स्कीम लागू करो पूरे गांव के गांव में। कोई उन गांवों में पहले पक्का मकान नहीं बना सकता, झोपड़ी में रहता था। वन विभाग के लोग और पुलिस के लोग वहां जाके शोषण करते थे, पैसे वसूली करते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचा करके मकान सबके लिए अनिवार्य, जमीन के पट्टे सबके लिए अनिवार्य, पेंशन की सुविधा पात्रता के अनुसार सबके लिए अनिवार्य, ये सभी सुविधाओं से इन्हें युक्त करने का काम किया। आपके सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में, गौड़ जाति हो, बुक्सा हो, चेरो हो, जितने भी ये जनजातियां हैं, इन सभी को हम लोगों ने इन सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया। नेपाल की तराई में आपके मुसहर है, आपका थारू है, बुंदेलखंड में सहरिया है, बिजनौर में बुक्सा है, इन सबको हम लोगों ने उन योजनाओं से पूरी तरह सिचुएट करने का काम किया और उन कार्यक्रमों के साथ चल रहे हैं। साथ साथ मुझे एक बात और याद आई, जब इन योजनाओं के साथ हम जोड़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भगवान राम जब महर्षि भारद्वाज की प्रेरणा से और महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में जब वनवास के कालखंड में रहने के लिए चित्रकूट गए थे, तो चित्रकूट में उनका स्वागत सबसे पहले किया था वहां के कोल ने। तो मैंने कहा कम से कम भगवान राम के नाम पर हम लोग काम करते हैं, तो भगवान राम की इस विरासत को कोल जाति को भी हम पूरी तरह से सिचुएट करें। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोल जाति को प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन सब को भी हम लोगों ने वहां पे सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम वहां पर किया है। कहने का मतलब ये है, संवाद आज की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी ने उस संवाद को आगे बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा की एक विरासत देकर के अल्पायु में धरती माता के प्रति और गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए कैसे संघर्ष किया जाता है, इसकी प्रतीक हैं भगवान बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के प्रति उस कृतज्ञता का भाव को व्यक्त करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज जनजातीय समाज के मन में एक नए विश्वास को बहाल करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। एक तरफ यह अपने उस समाज से जो मूल समाज है हमारा, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भारत की परंपरा और विरासत के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ रह करके काम करता है, और समाज के साथ हमारे संवाद के कार्यक्रम को जोड़ने का एक माध्यम जो है, एक तरफ इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक भाव सरकार की ओर से विनम्र किया गया प्रयास है। दूसरा है कि हमारी जो चुनौती है, याद करना, जो लोग उनके बीच में उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, अभी 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो, तो आप आश्चर्य करेंगे कि
आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि जब भी भारतीय समुदाय इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है, आप देखते होंगे एक तबका, हमने एक नियम बनाया, वर्तमान में इस सावन का महीना है, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से, उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके
अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। भगवान बिरसा की जो विरासत है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के उन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, और उस प्रेरणा से हम कुछ सबक सीख सकें। उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ और वहां की जिम्मेदारी शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। अगर हम इससे कुछ सीख सकेंगे तो आपकी चुनौती ये जातीय संघर्ष कराने वाले उन तत्वों से है जो फेक अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि बाकी क्षमता उनकी समाप्त हो चुकी है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब वो कहीं एक कोने में छुप करके इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त हैं। उनसे सतर्क और सावधान रहते हुए उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। किसी गांव का कोई 2 लोगों का मामला है तो उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए एक सिस्टम है उसका समाधान करने के लिए। तुम वहां जाकर के जबरदस्ती दरोगा की भूमिका में जाओगे तो पिटोगे, ये जरूर उनको समझाने की आवश्यकता है। जो बीच में आकर के जबरन करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द को बनाने में भी इससे बड़ी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन आप सबके स्तर पर हो पाएगा। मैं महाविद्यालय परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की इस विरासत को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज देश के अंदर चर्चा का विषय बना है, और 15 नवंबर को हर जनजातीय समुदाय बड़े गौरव के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरव के साथ मनाता है। यह वर्ष 150वां वर्ष भी है उनका, 150वीं जयंती का कार्यक्रम भी है। तो 150वीं जयंती के कार्यक्रम से हम राष्ट्रीय एकता के एक नए संदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से मैं महाविद्यालय परिवार को 2 दिवसीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्री अशोक भगत जी के कार्यों के प्रति उनका अभिनंदन करते हुए महाविद्यालय परिवार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन। जयपुर में आज सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 8000 से अधिक युवाओं को नियुक्त पत्र प्रदान किए गए। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता आंदोलन में मजबूत कर रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। भाई बारिश है, मैं समझ रहा हूं, मगर आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर समग्र राजस्थान के किसान और सहकारिता को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सहकारिता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के विकास को हरदम आगे बढ़ाया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, मेरे साथी मंत्री, यहीं के जनप्रतिनिधि श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, भाई गौतम दत्त जी, हमारे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, श्री आशीष कुमार भूतानी, सचिव सहकारिता श्री सुधांशु पंत जी, मुख्य सचिव राजस्थान, और आज इतनी बारिश में
जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी सहकारिता के कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। अरे हो गया भाई, सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब थोड़ा शांति रखो। भाइयों बहनों, सबसे पहले वीरता, देशभक्ति और धर्म संरक्षण के प्रति बलिदान की इस महान भूमि राजस्थान को मैं प्रणाम कर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिसने वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, पन्ना दाई और भामाशाह जैसे दानवीरों को भी जन्म दिया। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, सबसे ज्यादा जवान जिन राज्यों में से जाते हैं उसमें से एक मेरा राजस्थान है। ये राजस्थान की वीर भूमि, मैं राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज परमवीर चक्र निर्मल सिंह सेखों की जन्मतिथि है। निर्मल सिंह जी ने अतुल्य पराक्रम कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस और शौर्य और बलिदान दिखाया। मैं निर्मल सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 2025 का वर्ष सहकारिता वर्ष के रूप में मोदी जी ने ही इसका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। जब यूएन ने तय किया और एक सर्च किया गया कि सहकारिता वर्ष की शुरुआत कौन से राज्य से की जाए, कौन से देश से की जाए, तो उन्होंने हमारे भारत को पसंद किया और मोदी जी ने सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। और आज सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24 अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेट्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन, ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। जब आज राज्य भर से सहकारिता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की
4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है, उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया गया है। सभी पैक्स के मॉडल बायलॉज सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं और इसके साथ साथ गोडाउन बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई समितियां बनी हैं। दलहन, तिलहन और मक्का जो नाफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर रजिस्टर कराता है, वो सभी किसानों का दलहन, तिलहन और मक्का एमएसपी पर खरीदने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसके साथ साथ अगर बाजार में दाम ऊपर है तो उसको बाजार में बेचने की भी खुली छूट दी है। मित्रों, आज राजस्थान देश के कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। ग्वार का उत्पादन 90% से ज्यादा हमारे राजस्थान में है। 46% सरसों, 44% बाजरा, 22% तिलहन और 15% मिलेट्स के साथ ये सभी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। 18% मूंगफली के साथ दूसरे नंबर है। ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन में ये तीसरे नंबर पर है। और मित्रों, मोदी जी ने 11 साल में गेहूं की एमएसपी में 73% की वृद्धि, चने की एमएसपी में 82%, सरसों में 95% और मूंगफली में 82% वृद्धि करने का काम किया है। आज मैं राजस्थान आया हूं। राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के रूप में जानता है। हमने कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध का औषधीय गुणों के परीक्षण पर रिसर्च शुरू किया है, जिससे आने वाले दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने
सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजन लाल शर्मा ने किया है और आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश 11वें नंबर पर से 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछत्ते उड़ा दी और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और मोदी जी ने ये संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चा करने का, जमीन पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सहकारिता क्षेत्र के इस सम्मेलन के माध्यम से इतनी विपरीत मौसम में भी आप सभी लोग इतनी विशाल संख्या में यहां आए हो, मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगे। न केवल मजबूत करेंगे, 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हमारा राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में 1 नंबर पर हो, इस तरह से इसका मजबूत खाका बनाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2025 के वर्ष, सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए आप इतनी विपरीत मौसम में यहां आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया, वो सभी सेना के जवान और जिन्होंने ये मजबूत निर्णय किया, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाइए। सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाए, जरा हाथ उठाओ भाई, मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यह आंतरिक समिति की रिपोर्ट का मामला केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति से जुड़ा है और इसमें सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। मेघवाल ने कहा, वे सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। ये पूरी तरह न्यायपालिका के दायरे का मामला है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। देखिए, जस्टिस वर्मा का जो मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सो मोटो अपनी एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी। वो उनकी इन हाउस कमेटी है, सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है। इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आई, सरकार के पास आई। अब सांसद जरूर कुछ ये कहते हैं कि भाई ये सांसदों को कुछ ऐसे भ्रष्ट जो आचरण वाला अगर कोई जज है तो वो क्यों रहना चाहिए सिस्टम में। तो सांसद जरूर उद्वेलित है, वो चर्चा भी कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं सांसद, लोकसभा में राज्यसभा के सांसद इस विषय को चर्चा कर रहे हैं। वो एक अलग विषय, चैप्टर है। वो अगर 100 से ज्यादा साइन करके लोकसभा अध्यक्ष को देंगे तो लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेगा।
और राज्यसभा को देंगे तो राज्यसभा के चेयरमैन साहब कार्रवाई करेंगे। ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया है वो उनका सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल ही मैटर है, उन्हीं की ही जांच रिपोर्ट थी और उनको ही वो चैलेंज कर रहे होंगे, तो सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है। जी आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया विदेशी आतंकवादी संगठन। अमेरिका विदेश विभाग द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन दी रजिस्टर्ड फंड को विदेश आतंकवादी संगठन किए जाने पर पहलगाम हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता हैदर शाह ने गहरी संतुष्टि व्यक्त की है। जी मेरा नाम सैयद हैदर शाह है और जो ये एलईडी तंजीम है इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है इस पे हम खुश हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा और उसको वहां पे हत्या कर दिया। तो इसमें हम खुश हैं कि इन्होंने इस एलईडी तंजीम पे पूरा दबाव रख के इसको नाकामयाब किया और इस पे हम खुश हैं कि इन्होंने इसका एहसान किया और हमारे पर इंसाफ किया। जी ये तो सही है कि जो ये दरिंदा ये लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं इन पे तो पूरी बैन लगनी चाहिए और इनका पूरा खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे और भी लोग हैं जो नौजवान लोग हैं जिनकी हत्या न की जाए और जिनको इन लोगों को बेगुनाह न मारा जाए, जैसे आदिल की मौत या और 26 लोगों की मौत इन्होंने घाट पे उतारी। तो इस पे हम खुश हैं कि इन पे पूरी बैन लगनी चाहिए और आइंदा कभी ऐसा मसला ना हो, ऐसा ये हमला ना हो जहाँ पे लोगों की जान जा सकती है। तो आप अभी कितनी खुश हैं? जी बहुत खुश है। हाँ जी आपको इंसाफ मिला है? हाँ जी इंसाफ मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे पूरी पाबंदी लगाई है और इनको नाकामयाब किया है, तो हम बहुत खुश हैं इस पे। अपनी भारत सरकार पे मोदी जी पे अपने सरकार पे इन पे हम बहुत खुश हैं कि इन्होंने इनका खात्मा किया और इन्होंने इन पे पूरी बैन लगा के इनको ये किया, तो हम खुश हैं इस पे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गांधी परिवार पर लगाए झूठे आरोप अब भी जारी, बोले तिवारी। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि पहले भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं पर झूठे मामले दर्ज किए गए थे और अब गांधी परिवार के सदस्यों खासकर रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाया गया है। इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, सन 77 पे इंदिरा जी पे ऐसे ही झूठे मुकदमे कायम हुए, राजीव जी पे 1988-89 से शुरुआत हुई और अब जब से हम सत्ता में बाहर हैं तब से राजनीतिक द्वेष, घृणा की राजनीति, झूठ पर आधारित घटिया सतही आरोप लगाए जाते रहे हैं गांधी परिवार पर। उसी श्रृंखला में एक नया चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, इसलिए कि वो इस परिवार के सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं। वक्त ने बार बार साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे आरोप इंदिरा जी, राजीव जी और गांधी परिवार पर हमेशा न्यायपालिका के दहलीज को लांघ नहीं पाए और सभी निर्दोष साबित हुए, झूठे निकले आरोप। इसमें भी यही होगा, लेकिन ये घटिया राजनीति और ये विद्वेष की राजनीति में गंदगी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में भारत की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा, कौन नहीं जानता जिनको ऊपर आरोप लगाते रहे उनको लेके आप मंत्री बना रहे हो और जो लोगों के खिलाफ, जो आपके खिलाफ मजबूती से सच्चाई के साथ खड़े हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, उन पे आप झूठे आरोप लगाते हो। आपकी ये घटिया राजनीति की मैं निंदा करता हूं और मैं जानता हूं कि ये लोग इतने निडर और साहसी हैं कि एक बार फिर सच्चाई सामने आएगी। 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता है, सत्यमेव जयते।
बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी पहुंचे। 7,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास। बिहार के मोतिहारी में आज एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल पर पहुंचे हैं। यहां वे 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सरमराज चौधरी और विपक्ष के नेता विजय सिन्हा भी उपस्थित थे। माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत मोदी 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 भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत मोदी 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 मोदी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लद्दाख के साथ हुआ भेदभाव अब खत्म होगा। नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अपने पहले सार्वजनिक बयान में कहा कि हम लद्दाख के विकास के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। लद्दाख के साथ पहले बहुत भेदभाव हो चुका है, जिससे अब खत्म करना होगा। हम लद्दाख को दुनिया के टॉप पर्यटन स्थलों में शामिल करना चाहते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नव निर्माण के लिए काम करेंगे। बहुत कुछ करना बाकी है। लद्दाख के साथ पिछले समय में बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। बाकी कुछ कहना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी। सर, लद्दाख के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप एकदम एक्सपीरियंस वाला पॉलिटिशियन, फर्स्ट टाइम लद्दाख के चीफ के तौर पर आए। देखिए, हम सबको समझते हैं, पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मैंने काम किया है, तो सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर में भारी बारिश से बाढ़ का कहर। राजस्थान के अजमेर में अचानक आई भारी बारिश ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बुनावे इलाके में पानी के जमा होने से अजमेर जयपुर मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो चुकी है, जिससे यातायात पूरी तरह बंदित हो गया है।
यहाँ कहाँ से रहा है? यहाँ ही क्या रहने वाले हो गए आप? कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ से रहा है? यहाँ ही क्या रहने वाले हो गए आप? कहाँ रहते हो? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र और सरकार की छवि खराब हो रही है, बोले विजय वडेट्टीवार। मुंबई में विधान भवन परिसर के भीतर दो समूह के बीच हुई झड़प ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है और सत्तारूढ़ दल की छवि धुलती हो रही है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जहां कानून और व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए, वहां लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे हैं। बदनामी, महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, सत्ताधारियों की बदनामी हो रही है। इस तरह की बातें जब इस पवित्र मंदिर में होती है, जो कानून बनाने का, कानून और व्यवस्था बनाने की जो जहाँ पे ये स्थल है, उसी स्थल पर कानून को हाथ में लेकर इस तरह का इस हिमाचल में ये इस एरिया में या विधानसभा के बिल्कुल लॉबी में इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का मारपीट करना ये निंदनीय है। ये सीसीटीवी फुटेज देखकर इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होने की आवश्यकता थी, परंतु जिन्होंने मारा वो अकेले आरोपी को अरेस्ट किया, 4 आरोपी को छोड़ दिया। तो उनकी मांग यही थी, उनको इस तरह से गालियां देना किसी आमदार को, और वो पूरा सीसीटीवी फुटेज में आया है। जब वो देशमुख जा रहा था तब
वो सीढ़ियों पे किस तरह से इशारा किया जा रहा था वो भी दिख पड़ा वहां पे। मतलब किसके इशारे पर ये हमला हुआ है, वो प्लान के तहत हुआ है और पढ़ल करके पूरी बॉडी लैंग्वेज उसके इशारे वहां पे कैद हो चुके हैं, वो भी लोगों ने देखा है सीसीटीवी फुटेज में। अभी माफी मांगने से क्या इज्जत आएगी? आप किसी का खून करोगे और माफी मांगोगे, किसी के साथ में शोषण करोगे और माफी मांगोगे तो माफी हो जाएगी? इस तरह की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? किसके भरोसे हुई? किसके तुमने सत्ता की मस्ती है इसीलिए किया ना, अभी माफी मांग रहे हो। तो अभी महाराष्ट्र की सदन की ये हमारे महाराष्ट्र की गरिमा है देश में अंदर में, उस गरिमा को दाग लगाने का काम किया गया है। तो उसको माफी नहीं, उसको सस्पेंड करना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, तब इसका पवित्र बचेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गोवा को मिली पहली सौर ऊर्जा चालित नौका। गोवा के पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में राज्य की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका का उद्घाटन किया। ये नौका गोवा सोलर पावर हाउस और LRAJ ग्रीन प्रोजेक्ट लिमिटेड के सहयोग से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य है समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जिससे गोवा को ग्रीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सके। फेरीबोट के आज मेरे हस्ते उसका शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक, राज्यसभा के सांसद सदानंद तानवडे, एक्स MP नरेंद्र सावईकर और श्री लार्सन डिसा और कैप्टन जर्सन, इन दोनों के ओन किए हुए इस एलराज ग्रीन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की सोलार फेरीबोट जो इनॉग्रेट किए, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि गोवा के इनलैंड वाटरवेज में इस तरह की सोलार फेरीबोट का यूज करना बहुत जरूरी है। इन्होंने प्राइवेटली इनिशिएटिव लेके शुरू किया, इसलिए इन दोनों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। इन लॉन्ग रन they can use this as a for the tourism purpose, or in long run for the water taxi purpose also they can use whatever the permissions required from the COP tourism. Definitely we can give them the permissions to use this as a in future as a water taxi also. हाँ, डेफिनेटली इस तरह के जो सोलार के बारे सोलार में जो सोलार पावर बोट पैसेंजर बोट्स आते हैं, इनके लिए यानी सरकार जो सपोर्ट करना चाहिए वो सरकार सपोर्ट करेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कार्यकर्ताओं के लिए था भोजन, विकल्प दोनों थे, बोले नीरज कुमार। बिहार की सियासत में मटन भोजन पर छिड़ी बहस अब और तेज हो गई है। राजद के आरोपों पर जवाब देते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बचाव किया। नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि ये भोजन सावन के महीने में ग्रीन पंथों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर कार्यकर्ताओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन रखे हुए थे। लोगों को उनकी पसंद के अनुसार खाना खाने की स्वतंत्रता भी दी गई थी। कि माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी के परिजन हैं। मैं नहीं समझ पाता कि विदेश में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भारत के संविधान का ज्ञान उनको कितना है। और संविधान के तहत चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर आप राजनीतिक टिप्पणी व्यंग्य के रूप में कर रहे हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दल के साथ जोड़ करके, इसका मतलब है कि आप चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर हमला करके देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जिस मामले का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राजनीतिक टिप्पणी करना कोई संस्था पर, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्त की जा रही राय है उससे इतर हट करके अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी आपके भी विपक्ष के पिटिशनर वहाँ हैं, तो एफिडेविट कर दीजिए कि इलेक्शन कमीशन फला पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, उसका टूल्स है, और नहीं तो केवल बयान देने से आपकी जगहसाई होती है। माननीय लल्लन सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं और सावन महीना में
ग्रामीण पथों के शुभारंभ के कार्यक्रम में गए। कार्यकर्ताओं के लिए भोज था, मांसाहारी और शाकाहारी व्यवस्था की गई थी, जिसकी जो मर्जी थी वो खाया। तो माँ कामाख्या का मंदिर है गुवाहाटी में, कामरूप में, तो वहाँ तो पट खुलने के पहले बलि होती है। और विभिन्न जगहों पर लोग और सनातन धर्म मानने वाले लोग भी प्याज लहसुन खाते हैं। सावन महीना में भी एकदम प्याज लहसुन का चाय भी पीते हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में चिंता इसलिए हुआ कि वो नवरात्र की अवधि में और हेलीकॉप्टर में कंपन होता है। अब मछली खाइएगा तो कांटा गड़ेगा कि नहीं, तो कांटा नहीं गड़े इनको, इसकी चिंता के लिए हम लोग उस समय चिंतित हुए कि एक नौजवान मछली खाएगा अगर कहीं कांटा गड़ गया तो पूरा चुनावी अभियान में ही परेशानी हो जाती। इसलिए उनके स्वास्थ्य की चिंता के दृष्टिकोण से हम लोग राय दिया था। अब वक्त तो चला दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच